Hello everyone. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. How are you all? Good. Okay. Have you done your homework? Yes. Okay. Shall we start? क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको बताइए? मैडम 1 करोड़ मिलने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, yes, correct. Have you write it? जी मैडम। Okay. बताइए मुझे अगर आप मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे और 2 मैंने आपको एसेज दिए थे, करेक्ट? जी मैडम। ओके। बताइए प्रशांत, आपने क्या आंसर लिखा? कहेगा मैडम 1 करोड़ का। यस। What बताइए। 1 करोड़ रुपए approximately हम्म। be follow through full plan to make the most of the windfall has a responsible and impactful approach। करेक्ट। पहले मैं 30 दिन के लिए मैडम शॉर्ट टर्म में डालूंगा आपसे। क्या करोगे? शॉर्ट टर्म 30 डेज। 30 डेज के लिए क्या करोगे आप? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या? Take a breath, set aside time or think clearly about my next step। You are not audible properly to me. Gratitude, donate 1 lakh Donate 1 lakh. Okay. So very good. charity and I care about family support। allocate 20 lakhs to support my loved ones, ensuring their financial well-being। Or Very a good. tax obligation, set aside rupees 10 lakh for tax payment to avoid my future liabilities। Yes. Medium और मैडम पिछला गई मीडियम टर्म नेक्स्ट मंथ 6 महीनों के लिए मीडियम टर्म क्या लगेगा? एजुकेशन इन्वेस्ट 15 लाख in my friend purposing a valuable skill of certification to enhance my career prospects। Second, health and wellness, allow 5 lakh for a compulsory health checkup, insure and wellness initiative। Emergency fund, create a 20 lakhs emergency fund for unexpected expenses। और लॉन्ग टर्म के अंदर मैडम बिहाइंड 6 मंथ इन्वेस्ट वीकली इन्वेस्ट 30 लाख
a diversity fund of low risk investment fixed deposit mutual fund to generate steady returns. A second, entertainment venture. Consider investing rupees 10 lakh in a socially responsible startup. और आखिरी में philanthropy, donate 5 lakh to worldly cause of foundation supporting investing that light with my values. Remember this plan. Priorities, financial responsibilities, personal goals, and giving back society. Yes. Take 1 crore, I'll this investment. Very good. What about others? आप लोगों ने क्या लिखा? वेरी गुड प्रशांत. और मैडम आपने एक होमवर्क कहा था, here are some powerful contribution one can make to overcome challenge and create a positive impact. वेरी, हाँ बिल्कुल सब याद है आपको. और उसका मैडम मैंने ये लिखा, one empathy, listen activity, understand personality and show competition. Two, knowledge, share experience and educated other and foster critical thinking. Third, time, validated mentor and dedicated hours or to meaningful causes. Four, resource, donate funded and allocated assets to support worldly innovation. Five, networking, connect people, facilities, collaboration and build bridge. Six, creativity, innovate design solution and craft inspiring content. 7, mentorship, guide, coach and empowering others to reach their potential. 8, advocacy, raise awareness, champion cause and influence positive change. 9, resilience, share stories of overcoming adversity, inspiring hope and perspective. 10, authority, lead by example, demonstrating intelligence, kindness, and reliability. By contributing these powerful elements, I can overcome personal challenge and grow as an individual, support others in their struggles, and celebrate their success. Drive positive change in communities and societies as a whole. Leave a lasting legacy and make a meaningful impact. Remember, every contribution goes and collective efforts can lead to remember transformation. Yes. Is the screen visible? Very good, Prashant. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, done. और मैडम आपने रक्षाबंधन पे कुछ कहा था? हाँ बिल्कुल. सारा होमवर्क किया है प्रशांत ने. I feel very happy, Prashant. Thank you so much for doing that much efforts. What about others? Have you also done homework like Prashant? जी मैडम. Yes, ma'am. Yes, very good. Your efforts will help you to learn the language. It is very simple. Language बहुत easy है English. इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको बोलना है. Thank you to all of you कि आपने इतना दिन क्लास को अटेंड किया. डेली आपने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर शो की बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस, डूइंग होमवर्क, है ना. आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट्स तो मिला होगा. बताइए, हैव यू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास? Yes, ma'am. Okay. If a single person or most of you get benefit from it, then it is successful. If not, then it is waste for you and me also. ठीक है. तो इसका इस्तेमाल कीजिए अच्छे से, इसको यूटिलाइज कीजिए और कीप प्रैक्टिसिंग. बहुत मुश्किल नहीं है लैंग्वेज को लर्न करना. गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ हमने क्या क्या किया है अभी तक. हमने प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है, 3 सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है,
यहां से हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इज देयर एनी डाउट इन दीज सब पार्ट्स? किसको कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट, मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, हमने ये तीनों कर लिए हैं। आज की क्लास में हम करेंगे थोड़ा सा रिवाइज करा देते हल्का सा। yesterday was holiday, श्रीनिवास। चलिए, किस रिवीजन में हमने करा था, परफेक्ट से शुरू करते हैं। परफेक्ट में हम क्या बताते हैं कि जो काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, वो काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसमें आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है ये बताने के लिए कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, द वर्क इज डन। ठीक है, रिसेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है उसके लिए आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कोई काम कंप्लीट हो गया है बहुत टाइम पहले, है ना, तब उसके लिए आप परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। उसके बाद जब हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हम बताते हैं कोई चीज चल रही है कंटिन्यूअस वे में, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, सब आपके सामने है। उसके बाद हमने करा था सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है, रेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर नियर बाय फ्यूचर में कोई प्लान्ड आपका एक्शन है तो। ठीक है, इसका नेगेटिव फॉर्म में डू और डस के साथ नॉट लगा दिया जाता है और इंटरोगेटिव में डू और डस पहले आ जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं सारा फॉर्मूला एक जगह है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। क्लियर? एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ठीक है, सब अपनी नोटबुक में लिखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। देखते हैं आप लोग पहले लिखते हैं या मैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव भी लिख देते हैं हम इनका, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस डू डस, डू या फिर डस। डू आता है प्लूरल के साथ, डस आता है सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डू डस पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव में डू और डस पहले आ जाएगा। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमने करा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बताता है कोई चीज जो चल रही है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा था, सिंपल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस, ओहो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यश खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप लिख रहे हैं।
यस, राइट इट डाउन ऑन योर ओन, ठीक है, खुद से लिखिए आप लोग जिन्होंने पढ़ लिया है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इस, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको प्लस नहीं लगाना है, ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, इज, एम, आर पहले आ जाएंगे, ठीक है। इज, एम, आर। चलिए, क्लियर है आपको। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज चल रही है, ठीक है। अफर्मेटिव इंडेफिनाइट मतलब रेगुलर एक्शन बताने के लिए या फिर बताने के लिए कि कोई चीज प्रेजेंट में पूरी होने वाली है या फिर वो प्री प्लान्ड है। This is Vartika. I have shared you my mail ID over the text. Could you please share your updated What CV? happened? Ma'am, I sent you, na? You can check. Sorry? Who's this? I sent you, na? Yeah. Please share me with your CV. No, I have to share it with the client. So What I are need you an updated CV. doing? Could you please share with me that? Ma'am, the mail. No. No, I haven't received any. Do not share your personal information and personal anything with us. We are not interested. Mute yourself first. चलिए, अब हमने करा था, नेक्स्ट हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट। हैज और हैव के बाद आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज हैव पहले आ जाएगा। हैज प्लस, सॉरी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। अगर आपको प्रेजेंट टेंस आ गए अच्छे से, देन इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू कंप्लीट द होल टेंसेस। Got it? Is there any doubt till now? आप लोगों ने पहले लिखा या फिर मैंने? बताइए किसका मुझसे पहले हो गया था। तो साथ Is- में मैम साथ में चल रहे थे मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आजम? आजम नहीं मैम, दीपक। हाँ हाँ, दीपक, वेरी गुड। आजम ने चैट्स में लिखा है कि मेरा हो गया था, मैम इसलिए अजीम, मैंने। आजम नहीं। अच्छा, आजम पायम यहाँ पर किन चैट बॉक्स में मैं पढ़कर बता रही हूँ। हाँ तो अजीम लिखा है ना मैम, अजीम पयाम। अच्छा, अजीम, सॉरी सॉरी। यस, मैंने क्या बोला था, आजम? मतलब मेरे भाई का नाम है, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया हाँ, कि मेरा एक स्टूडेंट भी था आजम, तो मुझे उसका नाम याद आ गया, सॉरी। चलिए, इज इट क्लियर? बताइए, इज देयर एनी डाउट? नो मैम।
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पास्ट टेंस। ठीक है, अब आज हम करेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको लास्ट में एक साथ कराऊंगी इफ नीडेड। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लास्ट में सबका एक साथ करेंगे। डन। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। ये बताता है पास्ट में जो चीज हो चुकी है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट इसके आखिरी में आता है। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट में क्या होता है कि जो चीज पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, जो कार्य पास्ट में खत्म हो चुका है। ठीक है, बताइए। एक्शन कंप्लीट इन पास्ट। ठीक है, आपने पहले कोई काम कर लिया है, या फिर रूटीन एक्शन ऑफ पास्ट। आप कोई काम जो पास्ट में करते थे उसके लिए भी आप ये यूज करेंगे। ठीक है, कब यूज करना है हमें? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया है उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको यूज करना है रूटीन एक्शन बताने के लिए जो आपका पास्ट में था। ठीक है, गॉट इट। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, बताइए, डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। डिड आपका सिर्फ नेगेटिव में यूज होगा, पॉजिटिव में आप डिड का यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव प्लस नॉट। ठीक है, मेनली आप डिड का यूज कहाँ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में। गॉट इट। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर लर्न होगा तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। रोट हो गया ना मैम? हाँ, रोट। रोट। ठीक है, सी सॉ सीन, सॉ हो जाएगा आपका आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। ठीक है, आई सॉ हर yesterday। ठीक है, कल मैंने उसे देखा था, yesterday। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखिएगा इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, अफर्मेटिव। Madam, he went to school. व्हाट हैपन? अफर्मेटिव में क्या होगा? आई सॉ हर yesterday। इसको हिंदी में बोलते हैं ता, था, थे, थी। ठीक है, था, थे, थी। He did make a mistake। ठीक है, वो गलती करता था। He did make a mistake। ऐसे आप did का भी यूज कर सकते हैं। Do, did, done। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लर्न है तो आप इसको सेकेंड फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनाइट कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनाइट यूज होता है वो बताने के लिए जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में आप उस काम को कर चुके हैं, या फिर बताने के लिए कोई ऐसा काम जो आप पास्ट में करते थे, वो आपका रूटीन था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम इसके नेगेटिव में यूज करेंगे डिड।
सब एक सेंटेंस बनाइए क्विकली एवरीवन। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट से एक सेंटेंस बनाइए। मैम ही रोट ए लेटर। Who wrote a letter? Correct. Write, wrote, written. Wrote सेकेंड फॉर्म है। प्ले वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। He played I cricket. went to school. He played cricket. Ma'am, I went to Okay. school. हाँ, go, went, gone. Correct. I went to market या फिर store. He played cricket. ठीक है। I went To to store. store. To the store, madam. To the store. Okay. And she had breakfast at 7 a.m. हाँ, she had. Correct. Has, had, उसके बाद आप have. ठीक है। She Ma'am, has. they played soccer yesterday. हाँ, करेक्ट। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? Is there any doubt? Yesterday I celebrated Raksha Bandhan. Very good, Azim. Correct example. Let's I went move to forward to negative. हाँ बताइए। I went to school. I went to home. Correct. Home. Correct. We watched a movie last weekend. हाँ, we watched movie last night. वेरी गुड। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इसके नेगेटिव में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसके नेगेटिव में। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी फोकस्ड एवरीवन। ठीक है, प्रॉपर फोकस आपका यही होना चाहिए। म्यूट योर माइक इफ यू डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको नहीं बोलना है देन म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ठीक है, इसके नेगेटिव में ध्यान रखना बिल्कुल कि इसके पॉजिटिव में अफर्मेटिव में आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन नेगेटिव में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ऐसा क्यों होगा? इज देयर एनी आइडिया? बताइए। हमने ऊपर तो क्योंकि मैम, हेलो मैम, हाँ जी क्योंकि मैम डीड पहले आ गई मैम। बिल्कुल। ईडी सेकंड वाला फर्स्ट में ही है। ओके। ठीक है, हमने ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर ली है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? डू, डिड, डन। ठीक है, इसलिए आप दोबारा से वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर चुके हैं। ठीक है, डिड अपने आप में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। गॉट इट एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? हम यहाँ लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड V3। ठीक है, हम यहाँ पर डिड की सेकेंड फॉर्म नेगेटिव में इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है। याद रखिएगा इसको कि जब आप अफर्मेटिव लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी नेगेटिव में, क्योंकि डिड अपने आप में नेगेटिव है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैम एग्जांपल बताऊं मैं? हाँ बताइए। डिड आई गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव बताना है। नेगेटिव में मैम, यस आई आई डिड नॉट गो टू स्कूल। correct. I did not go to school. He did not come to the office. Correct, Sunil. I did not celebrate Raksha Bandhan yesterday because I have no sister. ठीक है,
यस, करेक्ट आजिम। हाँ बताइए। He did not come office from last week. ठीक है, लास्ट वीक से वो ऑफिस नहीं आ रहा है। He did not come office from last week, या फिर इसे इतना ही कर लीजिए। ठीक है, He did not come office। और बताइए, give me more example। I did not eat a mango. I did not eat mango, correct। A मैंने mango. आम नहीं खाया था। I did not eat mango। ठीक है, I did not complete work, correct। I did not go to school, बिल्कुल He सही है। did not go. He did not go to school, correct। Very good नीलिमा। और बताइए, मैम समझ आया? मैंगो, हेलो मैम, हाँ जी हेलो मैम, बताइए। मैंगो के पहले ए का प्रयोग नहीं आएगा मैम? कंपल्सरी नहीं है ए, अगर आप किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तब आप ए लगाएंगे तो बेटर रहेगा। And he did ठीक not है, play cricket. मैम स्पेसिफाई की। क्योंकि एक बार में तो एक ही आम खा सकते हैं, 4 आम तो नहीं खा सकते हैं एक बार में। हाँ कह सकते हैं आप। मतलब 1 बाय 1 खाएंगे, 4 आम खाएंगे तो 1 बाय 1 खाएंगे हम। हाँ हाँ, इंग्लिश में हमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना होता कि हम एक बारी में एक ही आम खा सकते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो आप लिख सकते हैं, बट इफ यू स्पेसिफाई इट देन इट इज मोर सुटेबल। यस, और He did बताइए। नो मैम, मैं कोड इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है ना मैम, हाँ उसमें पढ़ा था मैम। ठीक है, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। और बताइए। He did not go to play cricket. He did not go to play cricket, correct। और बताइए। I did not get any call from you, बिल्कुल सही है श्रीनिवास। I did not get any call from you। I hope it is clear to all of you. Let's move forward to interrogative। इंटैरोगेटिव में कुछ नहीं करना, बस डिड को उठाकर आगे ले आना है। सिंपल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेरी सिंपल, हमें कोई एफर्ट्स नहीं डालना, सिर्फ डिड को आगे लेकर आना है। बनाइए सेंटेंस। डिड यू कॉल मी, ठीक है, क्या तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ Did you Did go I to not school? go to school? हाँ, Did I not कॉल go मी, to school? करेक्ट। Did you go to school? Did और you go to बताइए। school? Sir, he Did play you go Yes. to school? करेक्ट करेक्ट। और बताइए। Did you go to school? करेक्ट, आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। Nadeem, ma'am, Nadeem. करेक्ट नदीम। यस, और बताइए। डिड यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद योर सिस्टर? करेक्ट। Did you attend the class? डिड यू अटेंड द क्लास? वेरी गुड। और बताइए। Then did he play music? डिड ही प्ले म्यूजिक? करेक्ट। Did you complete your work yesterday? यस, वेरी गुड। डिड यू कंप्लीट योर वर्क? है ना, हम पूछते हैं ऐसे कि आपने काम अपना पूरा कर लिया था। डिड आई गेट एनी कॉल फ्रॉम यू? हाँ, Then और did he बताइए। celebration in my hostel Rakshabandhan. स्पीक अगेन, दोबारा बताइए। Did you celebration in uh, did you celebrate in my Rakshabandhan? डिड यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन इन योर कॉलेज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। College. हाँ, या फिर एट योर होम।
Okay. Yes, मैम correct, कंप्लीट आजिम. मैम कंप्लीट में आर नहीं आएगा मैम, ऊपर वाले कहाँ लिखा है आर? मैम ये क्वेश्चन नहीं था, ये सच्ची में पूछ रहा था मैं, डिड यू टाई राखी टू एनीवन यस्टरडे? Yes, I have 3 brothers. One my real and 2 my cousin brother. आपने मुझे नहीं See. भेजा। Oh, yes. हैप्पी रक्षाबंधन मैंने आप सबको बोला था. Have you attend Saturday class? तो राखी नहीं भेजा ना, और वो मिठाई नहीं भेजा था। Okay. Come to Delhi, then I tie Rakhi to everyone. Delhi? Are you in Delhi, ma'am? Yes. Do you know I'm also from Delhi? Okay. Where I do think you- most of the students are from Maharashtra here. Am I correct, everyone? But I'm the person who lives in Delhi, I think. Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, where do you live in Delhi? Proper information class में नहीं दी जाती है. Let's focus on studies. मैं ठीक है? मैं राखी बंधवाने आ रहा हूँ मैम। Okay. Did you celebrate रक्षाबंधन? ठीक है, आपका नीलिमा, आपका यही था ना, Did you celebrate रक्षाबंधन at your college? Mom, did you play like watching movie? हाँ बिल्कुल. अरे what I did it wrong. It's okay, didn't connect. ठीक है. Did you celebrate ma'am. रक्षाबंधन at college? बताइए. मैम ये एस आएगा कि इन आएगा मैम, ये एट योर कॉलेज या इन योर कॉलेज? At हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफाइड प्लेस के लिए. ठीक है. ओके मैम। इन आप यूज कर सकते हैं किसी जैसे एक, मैम कॉपी हाँ, के अंदर में पेन पेन रखा हुआ है मैम, इनसाइड. नहीं? हाँ, हाँ, उसके लिए. टेबल इन कॉलेज. टेबल हाँ. के नीचे। जब आप स्पेसिफाई किसी प्लेस को डिनोट करते हैं तब आप यूज करते हैं एट. ठीक है. और टाइम के लिए आप एट यूज करते हैं. ठीक है. इन कॉलेज. यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इज इट अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? बहुत No, ma'am. सिंपल है. हमने No, क्या ma'am. पढ़ा अभी? प्रेजेंट टेंस पढ़ा हमने. प्रेजेंट टेंस में पास्ट इंडेफिनाइट. आई रिवाइज यू. इसमें आप बताते हैं कि एक्शन जो कंप्लीट हो गया है पास्ट में, रूटीन ऑफ पास्ट. ठीक है, वो चीजें जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं. अफर्मेटिव में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. गॉट इट? इंटरोगेटिव में हम यूज करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. वेरी सिंपल, बहुत आसान है. योर होमवर्क इज मेक 5 सेंटेंस ईच. ठीक है. ईच सब आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. ईच मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ऑफ ma'am. पास्ट इंडेफिनाइट. इज देयर नो डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड टू पास्ट कंटिन्यूअस. बताइए, कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। चलिए. पास्ट कंटिन्यूअस बहुत सिंपल है, बिल्कुल किसकी तरह? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह. हमने देखा था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिमिलर है बिल्कुल. अगर मैं चाहूं तो यहाँ से मैं कॉपी करके भी इसका फॉर्मूला लिख सकती हूँ. कॉपी करने का मेरा मतलब है कि आप भी इसे अपने माइंड में कॉपी कर लें. ठीक है. सिंपल. इसमें हमें सिर्फ चेंज क्या करना है? वॉज और वर.
क्या चेंज करना है? was and were, बस इतना चेंज होगा। इस MR की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? was और were यूज करेंगे। गॉट इट? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मच सिंपल। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं हम? ये बताने के लिए जो एक्शन पास्ट में चल रहा है। ठीक है, ये बताने के लिए जो एक्शन पास्ट में चल रहा है इसमें आएगा। जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस दिखे दैट मीन्स रहा है का यूज होगा। ठीक है, She was एक्शन, writing a letter. She हाँ was writing a letter. करेक्ट, एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था। ठीक है, गॉट इट? सिंपल, बस इतना ही। इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम? इसका सेंटेंस होगा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपने क्या बताया दीपक? ही वॉज राइटिंग, She was writing a letter. Yeah, he was. दोनों हाँ, सेम हो जाए। शी वॉज राइटिंग लेटर। और a letter or letter. ठीक है, ही वॉज राइटिंग लेटर। और बताइए। He was playing game, madam. हाँ, वर का बताइए एग्जाम्पल। देवर कमिंग yesterday, वो कल आ रहे थे। देवर स्टडिंग हिस्ट्री, करेक्ट, देवर स्टडिंग हिस्ट्री। और बताइए। They were celebrating birthday. करेक्ट, they were celebrating बर्थडे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल है। दे वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। इज देयर एनी डाउट? नो, मूव फॉरवर्ड टू नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में भी अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहां से कॉपी करके आगे पेस्ट कर देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चेंज करना है बताइए? Was were. वॉज और वर चेंज करना है। ठीक है, हम यहाँ से क्या चेंज करेंगे? सिर्फ वॉज एंड वर। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सेंटेंस बनाइए। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर, And दे he वर, was playing a game. हाँ ठीक है। वी वर इन बैंगलोर यस्टरडे, करेक्ट श्रीनिवास। वी वर इन बैंगलोर यस्टरडे, ये आपका इस सेंटेंस में नहीं होगा, इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, इसमें आपको मैम बताना है एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। मैम आई वाज नॉट He was वेटिंग cooking फॉर यू, food. ये तो हो हाँ गया। करेक्ट, आई वॉज या शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू as she has an urgent work। और बताइए, गिव मी एग्जाम्पल। क्विकली एवरीवन। She was Yes. not going to school. Yes, he was not going to school. They were asking question, very good, वो सवाल No, he was पूछ not रहे थे। वेरी गुड नीलिमा।
He was not eating the food. He was not eating The food. food. हाँ. They were asking question. घर आके हम मम्मी को बताते हैं ना कि वो हमसे सवाल पूछ रहे थे या वो हमसे ऐसा बोल रहे थे. ठीक है. I was waiting for you to tie the rakhi yesterday. He was not To watching the tie movie. the राखी नहीं होगा, आप राखी नहीं बांधेंगे, है ना? Ma'am, he was not watching the movie. Correct. He was not Watching the movie. watching. मैम इसमें तो दे भी ना लग सकता है, दे वेयर नॉट वाचिंग द मूवी. हाँ, they were होगा ना, he के साथ Yes, was ma'am. लगेगा. हाँ, they were not watching the movie. हाँ, बिल्कुल हो सकता है. He was not watching The movie. movie. आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर है तो was were, और अगर आपका सिंगुलर है तो was और प्लूरल है तो were. सिंपल. Let's move forward to interrogative. ठीक है. अगर हम इंटारोगेटिव भी यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे तो कोई प्रॉब्लम? मैम एक डाउट था, हाँ, पूछिए. ये सेंटेंस में अभी आपने बोला कि आप राखी नहीं बांधेंगे, टाई द राखी यस्टरडे, तो इसमें क्या, अच्छा ओके ओके, टाई राखी टू मी यस्टरडे ऐसा होता, राइट? हाँ, यस. मैं समझा कुछ और यहाँ पे यूज करना है वर्ब में. नो. चलिए, इंटारोगेटिव. ठीक है. लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट हियर. आपको क्या करना है, अपने माइंड में इसे पेस्ट करना है. सिंपल. ठीक है. इंटारोगेटिव में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, वॉज वर पहले आ जाएगा. ठीक है. वॉज वर. वॉज वर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. इज देयर एनी डाउट? No, no. इंटारोगेटिव सेंटेंस बनाइए क्विकली. मैम वेयर दे आस्क क्वेश्चन. वर, वेयर नहीं, वर पढ़ते हैं हम इसे. ठीक है. हाँ, व्हाट दे आस्क क्वेश्चन. वर दे आस्क क्वेश्चन. करेक्ट. और बताइए. वाज ही Was- वाचिंग. Was he watching. writing a book? Correct, Varun. Yes. Was he Was I cheating you? going to school? Was they play cricket? Was नहीं, वर. Was ठीक है. Was I going to school? आई अपने आप में प्लूरल माना जाता है सम कंटेक्स्ट. Was है. they read the book? आई वॉज और Was वर. I going to? हाँ, ठीक है. Now, was they read the book? वर दे. Read book. क्लियर इट. वर दे. Was they reading the book? Was they reading book? Correct. Was he writing a book? Correct, Varun. Were they Was he- asking question? हाँ. मैम हेलो मैम, उसमें आस्किंग ना होगा मैम, वर दे आस्किंग क्वेश्चन. Yes, yes. Were they asking question? ठीक है. Was he? Madam, Was you go to going school? क्या बोला आपने? Was they नजीम? celebrating birthday? Correct. Speak again. Was you go to school? Was he go to school? Correct. Was Was he you- going? Going होगा. Was you? Was ing. you? Use ing and from formula. Were they celebrating birthday? Was they reading the? कब करा था? कहाँ करा था? दे के साथ वर होगा, वर पे. Let it clear. Was were subject verb की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऐसे आप इसको यूज करेंगे कंटिन्यूअस बताने के लिए. was were का आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप कोई एक्शन जो कंटिन्यूअस था पास्ट में वो बताने के लिए करेंगे. ओके. Was he asking the question? हाँ. Was he asking the question?
Was he asking question? Correct. और बताइए. Was going to home. हाँ. Was he attending classes? Was you yesterday attending the class? मैम वाज सी वर यू, वर आएगा. ठीक है. वर यू अटेंडिंग, यू आपके साथ आप प्लूरल यूज करेंगे. वर यू अटेंडिंग क्लास? मैम Yes. वाज सी ईटिंग फूड? हाँ बिल्कुल. और बताइए. डन. इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. हाँ. मैं आपको परफेक्ट बताऊं अभी या कल करें हम परफेक्ट? कल। आगे कर देंगे मैडम. कुछ नहीं करना. हैज हैव की जगह पर हैड लगाना है. सिंपल. ठीक है. हैज हैव की जगह पर आप क्या लगाएंगे? हैड लगा देंगे. ठीक है. मैं आपको होमवर्क देती हूँ पास्ट टेंस खुद से करने के लिए. मैम ओरल बता दीजिए, मेमोरी टेंस कल बताइए. हाँ ठीक है. क्या देखिए इसमें क्या यूज होगा आपका? हैज हैव की जगह पर यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं. ये रहा. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर सिर्फ हैज हैव की जगह पर हैड आ जाएगा. हैड. सिंपल दैट. अगर मैं इसको आज ही बता देती हूँ. ठीक है. यहाँ से अगर हम इसे कॉपी करते हैं और अगर हम इसे नीचे पेस्ट कर देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर क्या सिर्फ चेंज होगा? हैज हैव की जगह पर हैड यूज होगा. सिंपल. ठीक है. इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था इफ यू कंप्लीट दी प्रेजेंट टेंस बाय हर्ट, अगर अच्छे से आप उसे लर्न करेंगे तो पास्ट और फ्यूचर बिकम इजियर फॉर यू. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट मतलब जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, रीसेंट कंप्लीट हुआ है पास्ट में, उसके लिए आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. ठीक है. बनाइए सेंटेंस क्विकली. पास्ट I had done the work. Correct. She had the food. ठीक है. एक्शन डन इन पास्ट. पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट एक्शन. ठीक है. पूरा हो चुका है. इसके आखिरी में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे. ठीक है. I had done the work. मैं अपना काम पूरा कर चुका था. Then she had to go to school. हाँ. ठीक है. मैम गलत है मैम ये. I had क्या? आई गो टू स्कूल नहीं होगा मैम, ये गलत ट्रांसलेशन है. किसने कहा? मैम ये नाम क्या है इनका ये? अच्छा. क्या बोला प्रशांत आपने? She आई had गो go to टू the स्कूल. school. शी गलत. हैड. गो नहीं होगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज गॉन करनी होगा. है. गॉन होगा. गो वेंट गॉन. हाँ. आई हैड सीन. फर्स्ट गिव मी एग्जाम्पल. ठीक है. आई हैड सी सॉ सीन. सी का क्या हो जाएगा? सीन. वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई हैड सीन यू. ठीक है. मैम द सी हैड गॉन टू स्कूल होगा ना मैम? सी हैड हाँ गॉन टू बिल्कुल स्कूल. बिल्कुल. She had फर्स्ट go ओके मैम. क्या बोला आपने? शी हैड गोन टू स्कूल. ठीक है. वह स्कूल जा रहा था, जा चुका था. ठीक है. जब मैं उससे मिलने पहुंचा तो वो स्कूल जा चुका था. शी हैड गॉन टू स्कूल. गो वेंट गॉन. और बताइए. शी हैड डन हर वर्क. करेक्ट. She had done the food, madam. योर वॉइस इज नॉट क्लियर प्रशांत. समटाइम तो मैं आपकी ये बात सुन ही नहीं पाती हूँ. She स्पीक had done the क्लियरली. food. शी हैड रिटन. राइट रॉट रिटन. करेक्ट. शी हैड रिटन दी बुक. See, Okay. he हाँ, had done.
He had done done the work. He had done his work या her work. He had done his work. She had done her work. मैम Yes. I had drunk water. Drink, drank, drunk. Correct. Drunk. Yes, ma'am. करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बना लेंगे आप लोग। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैड के बाद नॉट लग जाएगा। आई हैड ईमेल्ड यू। हाँ ठीक है, मैम ये वाला सेंटेंस यूज तो नहीं होता होगा ना ज्यादा? होता है बिल्कुल। ये बहुत कम। ठीक है, इसको आप कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि जब मैं उससे मिलने गया तो वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, हम अपना काम पूरा कर चुके थे। ठीक है, हम खाना खा चुके थे। ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। आई हैड फिनिश माई हाँ, आई Subject- हैड फिनिश्ड माई लंच। ठीक है, चलिए मेरा सब्जेक्ट subject प्लस हैड had प्लस प्लस VP नॉट, हैड प्लस नॉट VP प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सिंपल। उसके बाद इंटारोगेटिव। करेक्ट। इंटारोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा। हैड वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम ये सब होने के बाद टेस्ट भी लोगे फिर आप इनका बिल्कुल। टेंथ का? हाँ जी, घर पे ऑनलाइन रख मैम? लूँ आपका फॉर्मूला टेस्ट। मैम तो हैड सी गोन टू स्कूल ना मैम? करेक्ट, हाँ। मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि आप लोग बना लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, Yes, मेक ma'am. इट ऑन Yes, योर ma'am. ओन। होमवर्क है आपका सेम, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस के 5 ईच बनाने हैं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के 5 ईच बनाने हैं। सिमिलरली आपको परफेक्ट के भी बनाने हैं। बना लेंगे? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। तो आपके 15 30 सेंटेंस हो गए। कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, 30 सेंटेंस आप लोग बना लेंगे, बहुत सिंपल है। इज देयर एनी डाउट? नो No, ma'am. मैम। ओके, डू यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Had you made dinner? Correct, Srinivas. Take screenshot if you want. Yes, ma'am. मैम जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी निकल चुकी थी, ऐसे भी? हाँ बिल्कुल, चुकी आई थी। हाँ बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। आई एम गोइंग गो ऑन द ट्रेन No, no. प्लेटफॉर्म। While I reached platform, train had gone. ठीक है, reached मतलब पहुंचना। ठीक है, जब तक मैं पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। चोर मेरा पर्स When I चुरा reach the platform ना मैम? When I reach When the I platform. reached, हाँ हाँ, the platform. चोर मेरा पर्स चुरा के भाग चुका, चोर पुलिस को चकमा दे भाग चुका था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेक सेंटेंस एवरीवन। ओके ऑल मैम। द वेरी बेस्ट। Thank you, ma'am. ओके मैम, बाय मैम। All the best everyone. Complete your homework.